सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। नसू बनी इसराइल का एक शख्स था जो औरतों जैसी नरम आवाज और नाजुक जिस्म वाला था। इसकी दाढ़ी नहीं थी इसलिए लोग उसे औरत समझते थे। नसू was a man from the children of Israel who had a soft voice and delicate body like a woman. He had no beard, so people thought he was a woman. वो अपनी ज़ाहिरी सूरत से फ़ायदा उठाते हुए औरतों के हम्माम में काम करता था। वहीं वो औरतों का मसाज करता और उनका मैल उतारता था। Taking advantage of his appearance, he worked in women's baths, giving massages and helping them clean themselves. कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था। सब इसे औरत समझते थे। ये इसका जरिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त पाने का जरिया भी। No one knew his true identity. Everyone thought he was a woman. It became both his means of earning and a source of sinful pleasure. कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने तौबा की, मगर हर बार तौबा तोड़ देता। Many times his conscience rebuked him, and he repented, but each time he broke his repentance. एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम में आई। जब वो नहा चुकी तो पता चला कि उसका कीमती हीरा गुम हो गया है। One day, the king's daughter came to the bathhouse. After her bath, she realized her precious diamond was missing. बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए, मगर हीरा नहीं मिला। The princess ordered that everyone be searched, but the diamond was not found. नसू रसोई के डर से छप गया और दिल से अल्लाह को पुकारा, सच्चे दिल से तौबा की और वादा किया कि अब कभी गुनाह नहीं करेगा। Out of fear of disgrace, Nushu hid and sincerely called upon God, repenting from his heart and vowing never to sin again. उसी वक्त बाहर से आवाज आई, नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। Just then, a voice came from outside, leave Nushu, the diamond has been found. नसू आंखों में आंसू लिए घर वापस आया और हमेशा के लिए इस बुरे काम से तौबा कर ली। With tears in his eyes, Nushu returned home and repented forever from his sinful work. इसने देखा कि इस शहर में रहना अब मुनासिब नहीं। इसने जो भी गलत तरीके से कमाई थी, सब गरीबों में बंट दी। He realized it was no longer right to stay in that city. He gave away all the wealth he had earned through wrong means to the poor. फिर वो शहर छोड़कर एक पहाड़ी पर जा बसा और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। He left the city and settled on a hill, devoting his life to the worship of Allah. एक दिन उसने एक भैंस देखी जो अकेली चुर रही थी। इसने सोचा कि शायद ये किसी चरवाहे से भागकर आई है। One day he saw a buffalo grazing alone and thought it might have escaped from its herdsman. इसने भैंस की देखभाल शुरू कर दी। कुछ दिन बाद एक काफिला रास्ता भूलकर वहां आ गया जो प्यास से निढाल था। He began to take care of the buffalo. A few days later, a caravan lost its way and arrived there, exhausted from thirst. नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और उनकी प्यास बुझाई। नसू gave them the buffalo's milk to drink and quenched their thirst. काफिले वालों ने नसू को रास्ता पूछा। इसने इन्हें आसान रास्ता बताया। उनके इखलाक से मुतासिर होकर ताजिरों ने उसे बहुत सा माल तोहफे में दिया। The travelers asked Nushu for directions, and he showed them the easiest path. Impressed by his character, they gifted him a lot of wealth. नसू ने इन पैसों से एक कुआं खुद दिया। वक्त के साथ वहाँ लोग बसने लगे और बस्ती आबाद हो गई। Nushu used that money to dig a well. Over time, people settled there, and a village grew. लोग नसू को इज्जत से देखने लगे, हत्ता कि बादशाह तक इसकी नेकी की शोहरत पहुंची। People began to honor him greatly, and even the king heard of his goodness. बादशाह ने उसे दरबार में बुलाने का पैगाम भेजा, मगर नसू ने माजरत की कि वो मसरूफ है। The king sent a message inviting him to the palace, but Nushu politely declined, saying he was busy. बादशाह खुद इससे मिलने चला गया। जब बादशाह उसके इलाके में दाखिल हुआ तो खुदा ने मुल्क को हुक्म दिया कि बादशाह की रूह कब्जा कर ले। The king himself went to meet him. When the king entered his area, God commanded the angel of death to take the king's soul. लोगों ने नसू को बादशाह के तख्त पर बिठाया और उसने इंसाफ और अदल पर मबनी हुकूमत कायम की। The people placed Nushu on the throne, and he established a rule based on justice and fairness. वही शहजादी जिसे कभी हाथ लगाने से भी डरता था, उसने नसू से निकाह कर ली। The same princess he once feared to touch in disguise later married him. एक दिन एक शख्स आया और कहा कि मेरी भैंस बरसों पहले गुम हो गई थी। नसू ने कहा ये भैंस मेरे पास थी और जो कुछ मेरे पास है उसी की बरकत से है। One day a man came and said his buffalo had gone missing years ago. Nushu replied, that buffalo was with me, and all I have today is because of it.
नसू ने हुक्म दिया कि अपने माल व दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। नसू ऑर्डर्ड दैट हाफ ऑफ हिज वेल्थ बी गिवन टू द ओनर ऑफ द बफलो। वो शख्स बोला, ए नसू, ना मैं इंसान हूँ और ना वो जानवर भैंस है, हम दोनों फरिश्ते हैं जो तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। द मैन सेड, ओ नसू, आई एम नॉट अ ह्यूमन, नॉर वॉज दैट बफलो एन एनिमल। वी आर एंजल्स सेंट टू टेस्ट यू। इन्होंने कहा कि ये सारी नियमत तुम्हारी सच्ची तौबा का नतीजा है। फिर दोनों फरिश्ते गायब हो गए। They told him that all these blessings were the result of his sincere repentance, and then both angels disappeared. उसी लिए सच्ची तौबा को तौबा नसू कहा जाता है। That is why sincere repentance is called तौब नसू। नसू को तारीख की किताबों में बनी इसराइल के एक नेक और आबिद शख्स के तौर पर याद किया जाता है। नसू is remembered in history as a righteous and devout man from the children of Israel. जब उसने हराम कमाई और गुनाह छोड़ा तो अल्लाह ने उसे इज्जत, रिज़्क़ और बादशाहत अता की। When he gave up sinful earnings and repented, Allah granted him honor, sustenance, and kingship. अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा की तौफीक दे और इस पर कायम रहने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन। May Allah also grant us the ability to sincerely repent and remain steadfast upon it. Ameen.